السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ اللہ کر کے رسمیں ختم ہوئیں تو اسے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تو اس نے کراؤن کے سرہانے سجے میرون گلاب والے گاؤ تکیے کا سہارا لے کر کمر سیدھی کرنی چاہی، مگر اگلے ہی لمحے 9 عمر لڑکیاں اور کم سن بچیاں دلہن کی جھلک دیکھنے کے لیے کمرے میں آن وارد ہوئیں اور اس کے گرد ڈیرا ڈالنے لگی۔ مگر شاید قدرت کو اس پہ رحم آ گیا اور نگہت آپا کسی فرشتے کی طرح کمرے میں نازل ہوئی۔ ارے لڑکیوں، دلہن اب تھک گئی ہوگی، اسے آرام کرنے دو۔ نگہت آپا کی سرزنش پر سب لڑکیوں نے باہر کی راہ لی تو اس نے سکون کا سانس لیا، مگر فی الحال کمر ٹکانے سے احتراز کیا۔ نگہت آپا اب بیوٹی باکس کھول کر اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ میک اپ کی ری ٹچنگ کرتے ان کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اب ان کی زبان بھی متحرک ہو گئی تھی اور وہ آنکھوں کو جھکائے سماعتوں کے ذریعے ان کی طرف متوجہ تھی۔ دیکھو سدرا، میں جانتی ہوں کہ ہر لڑکی کی طرح تم نے بھی اپنی شادی کے حوالے سے کئی سہانے خواب دیکھے ہوں گے اور فطری طور پر اس دن کے حوالے سے تمہارے دل میں کئی ارمان اور امنگیں ہوں گی کہ شاید تم نے اپنے خوابوں کی تعبیر کو اس روپ میں پانے کی تمنا کبھی نہیں کی ہوگی، مگر شاید یہی ہونا تھا، اس لیے تم یہاں ہو۔ تمہارے لیے اگر یہ پہلا تجربہ ہے تو حارث نے بھی شاید کبھی بھی زندگی کے اس رنگ کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ تم بہت سمجھدار ہو، بہت پیاری ہو، میں تمہیں۔ نگہت آپا رک کر الفاظ تلاش کرنے لگی تو اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی سب سنبھال سکوں، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اس نے آنسو کا گولا حلق میں اتارتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی تو نگہت آپا اس کا ماتھا چوم کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، آرام کروں گی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا، میرا کمرہ برابر میں ہی ہے، میں حارث کو بھیجتی ہوں۔ جی، اس نے سر جھکا لیا۔ سدرا یوں ہی سر جھکا دینے کی عادی تھی، اسے یہ تربیت اس کے گھر اور ماحول سے ملی تھی۔ اماں ابا نے تینوں بہن بھائیوں کو ہر حال میں صابر اور شاکر رہنے کی تلقین کی تھی۔ خوب سے خوب تر کی تلاش میں اور میں اور انا کی تکرار نہ ان بہن بھائیوں نے اماں میں دیکھی نہ ابا میں۔ اسے سدرا سے بڑی دونوں بہنیں عابدہ اور عصمت کے لیے آئے ہوئے پہلے ہی رشتوں کو مناسب اور اللہ کی رضا جانتے ہوئے اماں ابا اپنے فرائض سے سبکدوش ہو گئے۔ سب سے چھوٹا بھائی ماجد بھی دیگر اولادوں کی طرح فرما بردار اور سعادت مند نکلا تھا۔ اکلوتا اور سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود اس نے میٹرک کرتے ہی ابا کے ساتھ دکان پہ بیٹھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ابا کو اب اس کی ضرورت ہے۔ ایسے میں اماں ابا رب باری تعالیٰ کا کروڑوں شکر ادا کر کے سرشار اور مطمئن تھے کہ اللہ نے انہیں سعادت مند اولادوں کے روپ میں اپنی رحمت و نعمت سے نوازا ہے۔ اسی لیے جب نگہت آپا، جو سدرا کی پرانی محلے دار تھی، سدرا کے لیے حارث کا رشتہ مانگنے آئیں تو اسے گوارا نہ ہوا کہ اس کے ماں باپ کا مان ٹوٹ جائے، جبکہ نگہت آپا کا مدعا جاننے کے بعد اماں ابا شش و پنج میں مبتلا ضرور ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں آمنہ خالہ، سدرا کی عمر اتنی نہیں کہ اسے ایسا رشتہ ملے، مگر آپ نے حارث کو بھی تو اپنی آنکھوں کے سامنے ہی جوان ہوتے دیکھا ہے، مگر کون جانتا تھا کہ وقت ہم پر اس طرح ستم ڈھائے گا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اترے تو امی بابا کی بھی پلکیں بھیگ گئیں۔ واقعی وقت بڑی ظالم شے ہے۔ اسی وقت نے تو نگہت آپا اور حارث دونوں کی زندگیوں کو بیک وقت سنسان کر دیا تھا۔ بہت بھرا پورا گھرانہ تھا ان کا، نگہت آپا، راشد بھائی، فریحہ، حارث اور عبید، حارث کا 2 سالہ بیٹا، اور پھر بس ایک اندوہناک بم دھماکے نے جب ایک ہی بلڈنگ کے کئی خاندانوں کے پرزے بھی کھیر دیے تھے، تبھی گھر میں موجود
निगहत आपा के शोहर राशिद भाई, फरीहा और उबैद हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए, जबकि किसी ज़रूरी काम से बाहर जाने वाले निगहत आपा और हारिस जिंदा बच गए। शायद इसे ही तो कहते हैं, जिसे अल्लाह बचाना चाहता है बचा लेता है, बस सबब और बहाने पैदा करता है। हम इस खस्ता हाल गली का 2 कमरों का छोटा सा मकान इसलिए छोड़ के गए थे कि एक तो हारिस की शादी के बायस घर छोटा लगने लगा था, फिर हारिस की ख्वाहिश थी कि फरीहा की आमद नए और खूबसूरत घर में हो, मगर अब वही 5 कमरों का अपार्टमेंट काटने को दौड़ता है। वैसे भी घर तो घर वालों से बनता है। अपनी सिद्रा को मुझे दे दे, मैं जानती हूँ वो हारिस को संभाल लेगी। रही मैं, तो जाने कितनी सांसें बाकी हैं। एक तो उम्र साथ छोड़ रही है, और जो इस उम्र का साझा साथी था वो भी छोड़ के चला गया। मुझे और राशिद को तो अल्लाह ने औलाद से नवाजा ही नहीं, मगर कम से कम हारिस और उसकी औलाद के दम से तो हमारी नस्ल चलती रहेगी। निगहत आपा ने सिद्रा के सर पे हाथ फेर कर बड़े मान से बाबा और अम्मा को देखा, और अम्मा बाबा ने सिद्रा को। फिर वही हुआ जो होता आया था। सिद्रा ने अम्मा बाबा की पुरउम्मीद आंखों में मौजूद दिए बुझने न दिए, और उनके कहने पे सर झुका दिया। दरवाजे की आहट पर ख्यालों में बैठी सिद्रा एकदम चौंक गई और संभल के सीधी होकर बैठ गई। हारिस कमरे में दाखिल हुआ तो वो अपने आप में सिमट गई। हारिस उसके ऐन सामने आकर बैठ गया। सिद्रा का दिल भी उसकी पलकों की तरह लरज रहा था। धड़कनें बेतरतीब हुई जा रही थी। दिल बेहद मुस्तरिब था, और वो सांस रोके हारिस की लब कुशाई की मुंतजिर थी। ऐसे मौकों के लिए काफी तैयारी की जाती है, जहां दुल्हा के दोस्त यार मायने के जुमले रटवाते हैं, वहीं दुल्हन की सहेलियां भी अपने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मशवरे देती हैं। देखो, ज्यादा बातें ना करना, चुपचाप बैठना। एतमाद और भरोसा ही कामयाब अज़दवाजी जिंदगी की जड़ें हैं। शोहर को दोस्त समझना, हर बात शोहर को मत बता देना। शोहरों को यूं मुट्ठी में करना है और यूं मोहब्बत और हुस्न के जादू से असीर कर लेना। मुशाहदे और तजुर्बे के निचोड़ से हासिल किया गया इल्म तकसीम किया जाता है, दुआएं दी जाती हैं, सदा खुश रहो, नेक तमन्नाएं हमरा की जाती हैं, सदा सुहागन रहो। मगर क्या करें जब किस्मत ही साथ न दे, या दुआओं को कबूलियत न मिले, या फिर किसी की नजर लग जाए। सिद्रा सोचती ही रह गई जब हारिस ने उससे कहा, सिद्रा, मैं जानता हूँ क्या लड़की की तरह तुम्हारे दिल में भी आज के दिन के हवाले से कई आरज़ुएं मचल रही होंगी, कई तमन्नाएं करवट ले रही होंगी, कई ख्वाब हमारे रिश्ते के हवाले से सोते जागते तुमने भी देखे होंगे। मगर मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ। मैं फरिया को भूल नहीं पाया हूँ, और ना शायद कभी भूल पाऊँ। मैं निगहत आपा का दिल भी नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैंने हामी भर दी। तुम जानती हो कि भाभी होने के बावजूद उन्होंने बिल्कुल माँ की तरह मेरी परवरिश की है। वो समझ बैठी हैं कि मेरी दोबारा शादी करके वो मुझे खुश देख सकेंगी, मगर खुशियाँ मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी हैं। तुमसे शादी मेरे लिए महज एक समझौता है। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना दूँ, मगर मैं तुम्हें धोखे में रखना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे फरीहा से मोहब्बत थी और रहेगी। तुम जब चाहो खुला लेकर जा सकती हो, वरना इन्हीं शराइत के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो। मेरी मोहब्बत के अलावा मैं तुम्हें हर चीज़ फराहम करूँगा। तुम्हारी ज़रूरत के साथ साथ तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की भी पूरी कोशिश करूँगा। ये तुम पर है, तुम कौन सा रास्ता चुनती हो। मेरी तरफ से तुम बाइख्तियार हो। मगर अब भी कोई अगर मगर बाकी था। बाइख्तियार करके पाबंद बना देने वाले खिलाड़ी को सिद्रा दाद दिए बगैर न रह सकी। जब हारिस ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हर अच्छी लड़की की तरह तुम अपनों की खातिर मेरी तरह समझौता कर लोगी और अपनों का दिल नहीं तोड़ोगी। हाँ, याद है, ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। मखमली डिब्बिया सिद्रा की जानिब बढ़ाते हुए गोया हारिस ने एक और मजबूरी दिखाई। सिद्रा का दिल चाहा कि वो डिब्बिया उठाकर हारिस के मुंह पे दे मारे। उसका दिल चाहा कि उसे इतना जोरदार थप्पड़ मारे
कि उसका चेहरा सिद्रा के दिल की तरह लहूलुहान हो जाए। वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी कि वो कौन होता है उसके अरमानों को सूली पे चढ़ाने वाला। वो तो शरन और कानूनन उसकी मनकूहा बन चुकी थी। वो माने न माने, वो उसकी जिंदगी में आ चुकी थी। वो क्या करे जिसे सिद्रा के दिल के अलावा हर किसी के दिल के टूट जाने की परवाह है। उसे लम्हे भर को भी ख्याल ना आया कि सिद्रा के सीने में भी एक धड़कता हुआ दिल है और दिल तोड़ना गुनाह कबीरा है। तो मैं क्या करूं? उठो और चेंज कर लो। सिद्रा की आवाज हलक से निकलने से पहले ही हारिस ने कहा। जी, सिद्रा ने कहा और सर झुका लिया। सच कहा है किसी ने, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। सिद्रा और हारिस की जिंदगी की गाड़ी भी चल रही थी। हारिस ऑफिस चला जाता तो सिद्रा बोर हो जाती, क्योंकि निगहत आपा अपनी बहन के पास इंग्लैंड चली गई थी। फरागत से छुटकारे के लिए सिद्रा ने करीब ही के स्कूल में मुलाजमत कर ली। छोटे छोटे बच्चों में खूब दिल लग गया। हारिस ने उसकी इस मसरूफियत पे कोई एतराज भी नहीं किया, क्योंकि वो घर पर भी भरपूर तवज्जो देती थी। घर की सफाई सुथराई, खाने पकाने और हारिस के जरूरी कामों के हवाले से सिद्रा ने कभी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया था। वो स्कूल से आकर नमाज से फारिग होकर 1 घंटा रेस्ट करके अपने कामों में लग जाती और रात में स्कूल का काम लेके बैठती, चाहे उसे रात भर जागना ही क्यों ना पड़े। उस दिन भी वो स्कूल से कॉपियों का पलंदा उठाकर थकी मादी घर में दाखिल हुई तो सामने अपनी पुरानी दोस्त सबीन को बैठा देखकर उसकी सारी थकान उड़न छू हो गई। हारिस की हफ्तावार तातील थी, इसलिए उसने सिद्रा से कहा कि वो आराम से बैठकर अपनी दोस्त से बातें करे। वो बाहर से खाना ले आता है। हारिस गया तो सिद्रा सबीन को बेडरूम में ले आई। भाई, तुम्हारे हस्बैंड तो बड़े अच्छे हैं, बड़ा ख्याल है तुम्हारा। सबीन ने बेड पे नीम दराज होते हुए कहा तो सिद्रा चुपचाप उसे देखने लगी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? तुम ठीक तो हो? सबीन ने कहा तो सिद्रा सिसक पड़ी। जाने कब का गुबार था जो आंखों से बहे जा रहा था। सिद्रा की हालत देखकर सबीन घबरा गई। उसे सिद्रा को गले से लगाकर तसल्ली दी। पानी पिलाया तो सिद्रा ने उसके इसरार पर जुबान खोल ही ली। तो तुम उससे कहती क्यों नहीं? तुम कोई भाग कर तो नहीं आई हो ना? निकाह हुआ है तुम दोनों का। अपनी गर्दन बचाने के लिए तुम्हें क्यों सूली पे चढ़ाया हुआ है उसने? सबीन सिद्रा के आंसू साफ करते हुए बोली। क्या फायदा सबीन, मैं जानती हूँ मेरे अल्फाज की उसके नजदीक कोई अहमियत नहीं होगी, मगर अब इस सफर में मैं उसका मजीद साथ नहीं दे सकती। मैं थक गई हूँ। और क्या फायदा ऐसे साथ का? पानी पीकर सिद्रा की हिचकियां थम गई थी। खुला चाहती हो? मेरे चाहने से क्या होता है? जो हुआ, जो हो रहा है, ये सब भी तो नहीं चाहती थी मैं। और खुला? अम्मी बाबा टूट जाएंगे। सिद्रा ने नम आंखें मसल डाली। तो डियर, तुम्हें कोई ना कोई स्टेप तो लेना होगा। इस तरह कैसे गुजरेगी जिंदगी? तुम दोनों ही बेजार हो जाओगे एक दिन इस मफलूज लाइफस्टाइल से। चुप मत रहो, उससे बात करो, ये तुम्हारा शरई हक भी है। मैं अपने आप को उसकी नजरों में गिरा नहीं सकती। क्या कहूँ कि मैं मरी जा रही हूँ आपके साथ के लिए? सिद्रा तड़प के बोली। बेवकूफ लड़की, मियाँ बीवी के रिश्ते में अना परस्ती जैसी कोई शय नहीं होती। देखो, अगर हारिस भाई फितरतन बुरे होते तो वो तुम्हारा यूं ख्याल नहीं रखते। इसका मतलब वो खुद उलझन में है, वो टूटे हुए हैं। तुम उन्हें जोड़ने समेटने की कोशिश तो करो। जरूरी तो नहीं अगर वो गलती कर रहे हैं, गलत राह पे जा रहे हैं, तो तुम उन्हें सीधी राह दिखाने की बजाय खुद भी जिद में वही राह अपना लो, या ला ताल्लुक होके उन्हें खाई में गिरने दो। सबीन ने उसके हाथ थाम लिए तो सिद्रा बेचैन होकर होंठ काटने लगी। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है सिद्रा? वो मोहब्बत के लिए तरसे हुए हैं, उन्हें मोहब्बत दो। मोहब्बत लफ्जों के इजहार की मोहताज भी होती है। तुम उनसे बात करके तो देखो, उन्हें अपनी ज़ात और शख्सियत की अहमियत के होने का एहसास तो दिलाओ। जो वो भूल नहीं पा रहे, तुम उन्हें उसका नेमुल बदल फराहम करो। वो तुम्हारी तवज्जो और मोहब्बत का जवाब खलूस से ही देंगे। वक्त बड़ा मरहम होता है। कोई भी फैसला करने से पहले उन्हें एक मौका ज़रूर दो। इस वक्त को हाथ से मत जाने दो। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और तुम तही दामां रह जाओ।
और पछतावे का एहसास तुम्हें सारी जिंदगी रसता रहे कि काश एक बार तो मैंने बीवी होने का फर्ज अदा करने की कोशिश की होती, काश कि मैंने एक कोशिश की होती। हारिस खाना देकर अपने किसी दोस्त की तरफ निकल गया था, इससे वो काफी हद तक मुतमईन और पुरसकून थी। हारिस की मौजूदगी में भी उसका सामना करने से कतराती थी। वो अपना आप उस पर मुसल्लत नहीं करना चाहती थी, मगर आज सबीन की बातें उसे करवट बदलने में मजबूर कर रही थीं। फासलों और दूरियों को जितना बढ़ाओ, राबतों की बहाली उतनी ही नागुज़ीर होती जाती है। रिश्तों को बनाने के लिए अपनायत भरा साथ दरकार होता है। सबीन के जाने के बाद वो काफ़ी देर तक सोचों के भंवर में उलझी रही थी। फिर कुछ सोचकर बेड से उठ खड़ी हुई। उसने वार्डरोब खोली तो सामने ही तरबूजी रंग का जॉर्जेट का फिरोजी कढ़ाई से मुज़य्यन सूट उसे खुद पे तरस खाने को कह रहा था। कितनी चाह से बनाया था उसने ये जोड़ा, मगर आज तक नहीं पहना था। फिर ड्रेसिंग टेबल से ज्वेलरी बॉक्स निकाल कर लाइट गोल्डन नगों वाली ज्वेलरी निकाली और शावर लेने चली गई। शावर लेकर बालों को हेयर ड्रायर करके उसने कितने ही दिनों बाद अपने लंबे सिल्की बाल खुले छोड़ दिए, जिन्हें वो हमेशा कैचर में कैद रखती थी। मस्कारे का आखिरी टच देकर उसने खुद को खुशबू में बसाया और धड़कते दिल के साथ लाउंज में आ बैठी। चैनल सर्च करते हुए भी उसका ध्यान हारिस की तरफ ही था। दिल अभी भी वसवसों के बीच डोल रहा था कि उसकी इस सज धज और काविश को हारिस क्या नाम देगा। बेशक बीवी और तवाइफ दोनों ही मर्द को रिझाने के लिए सिंगार और अदाओं को इस्तेमाल करते हैं, मगर उसे बताना था कि बीवी तवाइफ की तरह मतलब परस्त और तोता चश्म नहीं होती। तुम्हें उसने अल्लाह और रसूल को हाजिर जान के कबूल किया है। सिद्रा, अगर वो तुम्हारी पेशकदमी को एक बीवी की मोहब्बत की बजाय हथकंडा समझे तो समझ लेना कि वो शख्स शोहर और मर्द कहलाने के लायक ही नहीं। सबीन के अल्फाज उसे ढारस दे रहे थे तो हारिस के जुमले उसके पैर डगमगा रहे थे। उसने उंगलियां चटखाना शुरू कर दी। दिल बुरी तरह घबराने लगा और सर में शदीद टीसें उठने लगी। उसने उठने की कोशिश की तो आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया और एकदम से वो बेदम होकर सोफे पे ही ढह गई। और फिर जाने कितना वक्त बीत गया था। चेहरे पे बढ़ती तपिश ने उसे आंखें खोलने पे मजबूर किया। सूरज की किरणें सिद्रा के चेहरे पे पड़ रही थी। सर अभी भी कुछ कुछ भारी महसूस हो रहा था। उसने उठने की कोशिश की तो हारिस ने उसे थाम लिया। संभल के, तुम्हें शायद अभी भी चक्कर आ रहे हैं, तुम यूं ही लेटी रहो। क्या मैं रात भर? उसने वो मुश्किल आंखें खोलते हुए कहा। नहीं, तुम बेहोश नहीं थी, तुम्हें नींद का इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर ने। मेरे पास फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी थी तो उसी से लॉक खोल के मैं अंदर आया। अच्छा, अब जहन पे ज्यादा जोर मत डाल, आंखें बंद करो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। हारिस उसकी उलझन सुलझा के चला गया तो हारिस ने मुझे ड्राइंग रूम से उठाकर बेड पे पहुंचाया। सिद्रा ने खुद कलामी की। उसने एक बार फिर उठने की कोशिश की। मैंने कहा था ना लेटी रहो, बल्कि ये लो तकिया, इसका सहारा लेके बैठो और ये लो मेरे हाथ की कॉफी पीकर बताओ कैसी बनाता हूँ। हारिस ने फ्राई की हुई ब्रेड और एक कॉफी का मग ट्रे में रखे। ट्रे उसके सामने रखते कहा तो वह हैरत से तकने लगी। ऐसे मत देखो, मुझे और शर्मिंदा मत करो। हारिस उसके सामने बैठ गया। सिद्रा से पिटा गई। ऐसी वारिफ्ता निगाहें, मध्यम मोहब्बत से डूबा लहजा। वो बेताब हो गई। ऐसा क्यों किया तुमने? हारिस ने पूछा। क्या किया मैंने? वो एकदम हवन्नक होगी। मुझसे मोहब्बत की तो इसके इजहार में इतनी देर क्यों कर दी? वो तो अगर अचानक मैं बाइक की चाबियां लेने पलट कर नहीं आता तो तुम्हारी और सबीन की गुफ्तगू न सुन पाता और सारी उम्र यूं ही बेखबरी में गुजार देता और रोज़े महशर तुम्हारा मुजरिम भी ठहरता। हारिस ने कहा तो सिद्रा को उसके बदले हुए रूप की वजह समझ आई, मगर इस अजीब सी सूरत हाल ने उसका दिल रंजूर कर दिया। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। हारिस उठ के उसके पहलू में आ बैठा। मुझे लगा था सिद्रा कि तुम शादी की पहली रात की बर्बादी में मातम करोगी, मगर न जाने तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो। मुझे अपनी जाति का एहसास हुआ
تو مجھ میں پلٹنے کی ہمت اس لیے نہیں ہوئی کہ تم اسے ایک مرد کا کمزور نفس نہ سمجھ لو۔ بے حس سمجھنے کا حق تو تم یقیناً محفوظ رکھتی ہو۔ تمہارے گریز اور لیے دیے رہنے کے انداز نے تو میرا حوصلہ بالکل ہی ختم کر دیا۔ آپا کے جانے کے بعد بھی جب تم نے میری مصالحت کی کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دیا تو مجھے لگا تم میری قرابت اور رفاقت سے گریزاں ہو۔ سدرا کا ذہن اب ماضی میں بھٹکنے لگا تھا۔ نگہت آپا کے جانے کے بعد حارث بہانے سے اس کے ارد گرد منڈلاتا، مگر شاید وہی انا پرستی کے جال میں قید تھی جو اس کا خیال رکھنے اور آگے بڑھنے کی کاوشوں کو دیکھ نہ پائی۔ میں غلط تھا سدرا، جانے والوں کو بھولنا ہی ہوتا ہے، اور تم تو میری شریک سفر ہو، اور میری بھی خواہش ہے کہ یہ سفر ہم محبت سے طے کریں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، جو چاہے سزا دے دو، مگر اب مجھے تنہا نہیں چھوڑنا۔ اکیلا رہنا بہت مشکل ہے یار۔ حارث کی آواز بھرا گئی تھی۔ سدرا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کی رات بھر کی محبت بھری تیمارداری کی گواہی دے رہی تھی۔ سدرا کو لگا کہ اب بھی اگر اس نے حارث کو نہیں تھاما تو وہ واقعی ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا۔ اس نے بے اختیار ہو کر اپنا سار حارث کے سینے سے ٹکا دیا اور سسک پڑی۔ بس اب یہ رونا دھونا بند کر دو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں خوشیاں سیلیبریٹ کرنی ہے۔ باہر گھومے پھریں گے، سی سائڈ پہ جائیں گے اور کھانا بھی باہر ہی کھائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے نا، آج ہمارے ملن کا پہلا دن ہے، اور آج کے دن جس قدر ہوا ہم اپنے دامن میں خوشیاں سمیٹ لیں گے اور اس دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے۔ حارث نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی تو اس نے کسمسا کر کہا، سب سے پہلے تو مجھے اپنے رب کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں کہ اس نے میرے سجدے رائیگاں نہیں جانے دیے اور میری دعائیں قبول کر لیں۔ یاد آیا، دعا تو میری بھی قبول ہوئی ہے۔ میں بھی وضو کر کے آتا ہوں۔ نیک کام کو کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جی بالکل، سدرا نے کہہ کے سر جھکایا اور مسکرا دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب سر سجدے میں جھک جاتے ہیں تو زندگی آسان ہو ہی جاتی ہے۔